Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and I'm also fine over here. So today I'm again back here with a new topic, that is phrases. So today I'm going to teach you that what are phrases and the types of phrases. Let's begin. So as we all know that in English subject we have letters, right? So what is there? Letters. We all know that A to Z. And by joining these letters we make words. इनको मिला के हम क्या बनाते हैं? Words बनाते हैं. जैसे कि for example boys, girls, swim, right? And by joining these words we have a group of words जैसे कि on the table, in a corner, right? But from these group of words we are not getting a complete sense. ये जो मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं इनसे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही है, राइट? तो इन्हीं को हम कहते हैं फ्रेजेस. So what the basically phrases is? Phrases is a group of words. It is a group of words, right? It's a group of words. It have sense but not a complete sense. हमें इससे सेंस तो मिल रही है कि ऑन द टेबल की टेबल के ऊपर है, इन अ कॉर्नर कोने में है, सेंस तो मिल रही है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस. टेबल पर क्या है, कहाँ है, वी डोंट नो. इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में क्या है, कहाँ है, वी डोंट नो. सो हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही है. सेंस मिल रही है बट कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही है. दैट इज व्हाई इट्स अ फ्रेज. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है एंड दे कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस. और ये सेंटेंस में अकेले खड़े नहीं हो सकते एज अ सेंटेंस. दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. सो व्हाट द बेसिकली फ्रेज इज? phrases are a group of words and it's a part of a sentence. It is a part of a sentence. It's a group of words. It make a sense but not a complete sense. Sense तो देते हैं but complete sense नहीं देते हैं. It does not have subject verb agreement. Subject और verb का agreement नहीं होता है and they cannot stand alone as a sentence. और sentence में और सेंटेंस की तरह ये अलोन अकेले खड़े नहीं रह सकते जैसे सेंटेंस रहता है. बिकॉज फ्रॉम सेंटेंस वी आर गेटिंग अ कंप्लीट थॉट, मीनिंगफुल सेंस. बट फ्रॉम हियर वी आर नॉट गेटिंग अ कंप्लीट थॉट, अ मीनिंगफुल सेंस. दैट इज व्हाई इट इज अ phrase. Let us understand with the help of example. For example, I am saying he is sleeping on the bed. Right? What I said, that he is sleeping on the bed. He is sleeping on the bed. So here on the bed is your phrase. It's a group of words, right? It contains a sense but not a meaningful sense. It does not have a subject verb agreement. That is why these group of words are called phrases. And why not this phrase, he or his? Why not this? Because he is our subject. he हमारा subject है, is हमारा verb है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम फ्रेज नहीं कहते हैं क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है, इसलिए ये फ्रेज नहीं है. ये फ्रेज है क्योंकि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड. इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इट कैरीज सेंस बट नॉट अ मीनिंगफुल सेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंस. दैट इज व्हाई ऑन द बेड इज योर फ्रेज. Second example, if I say that fish swims in the water. If I'm writing fish swims in the water, अगर मैं बोलूं कि मछली पानी में स्विम कर रही है, तैर रही है, राइट? तो फिश क्या है आपका? सब्जेक्ट है, राइट? स्विम क्या है? काम कर रही है, मतलब स्विम तैर रही है, तो ये आपका हो गया वर्ब. तो मतलब ये दोनों तो आपके फ्रेजेस नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया. तो जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है वो हमारा फ्रेज होता है. तो वो क्या है? इन द वाटर. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, राइट? We are not getting a meaningful sense. We are not getting a complete sense. And here we don't have a subject verb agreement. That is why it is a phrase. So I hope that you have understood that what are phrases. Phrases is
phrases are made up of group of words, right? It is a part of a sentence. Sentence का ही part होता है phrase, और इसमें subject verb agreement नहीं होता है. It cannot stand alone as a sentence. अकेला खड़ा नहीं हो सकता as a sentence. And it makes sense but not a complete sense. उन्हें हम बोलते हैं phrases. एक और example लेते हैं last. She is sketching on the wall. She is sketching on the wall. Right. अब यहां पर क्या है फ्रेज? शी आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, ये तो आपका सब्जेक्ट वर्ब हो गया, तो ये आपका फ्रेज नहीं है. राइट. स्केचिंग आपका एक्शन वर्ड है, तो ये बचा ऑन द वॉल. ये आपको पता है कि ये आपका यहाँ पर हियर वी डोंट हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. इट्स नॉट गिविंग अस अ कंप्लीट सेंस. दैट इज व्हाई इट इज अ फ्रेज. ये आपका क्या है? फ्रेज है. तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या होते हैं. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं? वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. और वो कौन कौन से हैं? वी हैव टाइप्स ऑफ phrases, and we have noun phrase. Second is adjective phrase. Third is adverb phrase. And the fourth is verb phrase. These are the 4 types of phrases we are going to study in this video. Now let's start with the noun phrase. कि noun phrase क्या होता है? And before I start with the noun phrase, I just want to tell you that what is noun. Noun क्या होते हैं? Noun is the name of a person, place, animal or thing. किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह और किसी भी जानवर के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. और सेंटेंस में जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नाउन फ्रेजेस. जो सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज. अ फ्रेज. तो नाउन फ्रेज क्या हुआ? आपको समझ में आया नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और अ थिंग. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह के नेम को हम नाउन कहते हैं. और जो सेंटेंस में, जिस फ्रेज में, अ फ्रेज विच एक्ट्स लाइक अ नाउन, ऐसा फ्रेज, अ फ्रेज which act as a noun in a sentence, that is called noun phrase. उसे हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं. राइट. जो सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करता है उनको हम नाउन फ्रेज कहते हैं. और नाउन फ्रेज में क्या होता है आपका? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इट कंटेन्स नाउन एज अ हेड वर्ड. राइट. नाउन एज अ हेड वर्ड होता है, मतलब द इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस शुड बी नाउन. नाउन होना चाहिए इंपॉर्टेंट वर्ड, हेड वर्ड मेन वर्ड, नाउन होना चाहिए. प्लस मॉडिफाइज अ नाउन, विच मॉडिफाइज अ नाउन, यानी कि मॉडिफायर होते हैं. राइट. सो नाउन फ्रेज क्या कंटेन करते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. नाउन फ्रेज कंटेन्स अ नाउन प्लस मॉडिफायर. अब मॉडिफायर क्या होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो. राइट. फॉर एग्जाम्पल मॉडिफायर्स क्या होंगे इधर आपके? या तो आपका एडजेक्टिव होगा या फिर डिटर्मिनर होगा. राइट. डिटर्मिनर मीन्स आर्टिकल्स ए एम. या तो आपका एडजेक्टिव होगा या डिटर्मिनर होगा. तो नाउन फ्रेज क्या होते हैं? जो सेंटेंस में, फ्रेजेस जो सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करते हैं उनको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं. और उन सेंटेंस में जो आपका मेन वर्ड होगा, जो हेड वर्ड होगा, वो नाउन होगा. और जो मॉडिफाई कर रहे होंगे नाउन को, वो क्या होंगे? आपके नाउन फ्रेज. तो नाउन फ्रेज क्या होंगे? नाउन प्लस मॉडिफायर. और मॉडिफायर क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव प्लस डिटर्मिनर. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. राइट. जैसे मैंने आपको बोला, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस. मैंने आपको बोला दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल
हाउस, ये आपका सेंटेंस है, दिस इज द सेंटेंस. सो आई एम आस्किंग दैट व्हाट दे हायर्ड. मेरा क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या हायर किया, व्हाट दे हायर्ड. आपका आंसर क्या आया, हाउस. तो हाउस क्या है, व्हाट इज हाउस. हाउस है आपका नाउन, ये आपका हेड वर्ड है. और आपको इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला कि नाउन फ्रेज में क्या होता है आपका नाउन प्लस मॉडिफायर. तो नाउन हमें मिल गया हेड वर्ड. नाउन को कौन, इस हाउस को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल जो आपका एडजेक्टिव है, ह्यूज जो आपका एडजेक्टिव है, एंड जो आपका आर्टिकल है या डिटर्मिनर है. तो ये जो पूरा जो सेंटेंस है, जो ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड है आपका, ये क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज हो गया. राइट ये आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज.